Hey guys, welcome to the new video. So here now we are going to do one exercise. Okay, so in the before video we learned how to do if else statement, break and continue. Then we did while loops. Then we did for loops. Then we did range, and we did operators. So in today's video we'll just do one exercise. Okay, so we'll see what this exercise is. So it's stating that write a program using a for loop and if else. So you have to use a for loop statement in this, and you have to use the control flow statements. Okay, so if elif and else statement. So here first condition is print numbers from 1 to 20. So you have to print the numbers from 1 to 20, and if the number is divisible by 3, there you have to print fizz. Okay, and if it is divisible by 5, there you have to print buzz. Okay, so if it's divisible by both, means if it is divisible by 3 and 5, you have to print fizz buzz there. So we'll just start with the exercise now. So let us start. Before seeing the answer of mine, we'll just pause this video and just try to make this program by yourself so that you can get how it works, means how for loop works, how if else works, how if else works. So you'll get a glance of that how these things and all work in Python programming. So let us start with the programming. Now I'm going to take another file. So here first I'll start with the for loop. Okay, so I'll start with the for loop for n in range from 1 to 21. So I'm taking till 21 because we need till 20. So the number is still 21 I'm taking. And then we'll use this colon, and then we'll use if else statement inside this if else statement. So n percentage of 15 is equal to 0. So means for fifth bus, you can divide it by 15, and if the remainder is equal to 0, then you can print it as you can print that as a fizz bus. Okay, fizz bus. Okay, fizz bus. Okay. So now the next statement. Next statement is elif statement. We'll write it as n percentage of 3. If it's divisible by 3, equal to 0. Uh, print print it as fizz. And see if the number is divisible by 3, you have to print fizz in the place of that number. Okay, so if we do this, we have to add one more elif statement inside this. So if n percentage of 5 is equal to 0, means if it is divisible by 5, you have to print bus in place of that number. Okay, so here we wrote one code, and else you have to print n. Okay, else we do this, and we have to print n. Okay, so this is the code of that problem. We'll just see if it works or not. See here 1, 2, 3. So in place of 3, it has written fizz, and in place of 5, it has written buzz, and in place of 6, it has written fizz, and in place of 15, it has written fizz bus. Okay, so that's what the problem is. Okay, you just have to understand this. Okay, so I'll explain you once again. So here we have taken a range from 1 to 21. So the first number goes into the loop. Okay, leave the first number and second number. We'll take it as third number. So we'll enter the loop. Okay, we have entered the loop.
the third number. So 3 divided by 15 is not equal to 0. Okay, so it skips that if statement and it comes to the elif statement. So here elif statement tells us n is n percentage 3 equal to 0. So here 3 percentage 3 is equal to 0. So we have got 0 in this, we have got the remainder as 0. So it will print fizz there, and it will just come out of the loop, and again it will check one more number. It will check 4. If 4 is not divisible by any of these numbers in this, it will just print that n. Okay, so it will just print that number, and it again it will go as 5. So if it goes as 5, here it is 5 percentage of 5 equal to 0. So then it will print buzz here. Okay, so it will this two statement will get false, and it will come to the third statement, which is n percentage of 5 equal to 0, and then it will print it as buzz. Okay, so it will print it will be following in a loop, so for loop. Okay, so if you give the range till that range, it will be following the loop. So that's about this code. Okay, so they have given a hint also. So if you want to check both, if check both first. Okay, so if first check both, so you'll use n percentage of 15 equal to 0. If the number is divisible by both the numbers like 3 and 5, you use this expression, like n percentage of 15 equal to 0. So this is the program. Just once stop this video and do it yourself. So guys, अभी हम आप पहुंचते हैं सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो है लिस्ट मेथड्स। जैसे हम अभी लिस्ट के साथ खेल रहे हैं। ओके, तो हम अपने लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं इन अ डिफरेंट वेज, मतलब अलग अलग रास्तों में हम अपने लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ऐसे कह सकते हो कि हम लिस्ट के साथ खेल रहे हैं। ओके, सो अब देखते हैं क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है जैसे हम लिस्ट के साथ खेल सकते हैं। मतलब खेल नहीं सकते, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं। अपने वर्ड्स में मॉडिफाई, इंग्लिश वर्ड्स में मॉडिफाई कहते हैं, और अपने लैंग्वेज में खेलना कहते हैं। तो अगर हम शुरू करें पहली चीज से, तो ये कहता है कि अपेंड ब्रैकेट और आइटम। सो ये क्या बोलता है कि मतलब एक आइटम को हम एंड के लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हम एक लिस्ट बना रहे हैं, तो हम उसको, मतलब जो मैंगो, मतलब जो से अभी एप्पल ये लिया है, मतलब जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंगो करके। तो हम, अगर हमने लिस्ट बनाया फ्रूट्स का, तो हम मैंगो को लास्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे अब हमें प्रोग्राम के हिसाब से करें हम, तो अगर हम देख सके तो हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हमने इस फाइल को खोला और हमने लिखा इधर चलो ठीक है, हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं इसके हिसाब से। तो हमने एक फ्रूट्स का एक लिस्ट बनाया। ठीक है, फ्रूट्स का एक लिस्ट बनाया। आपको कौन सा फ्रूट पसंद है बताइए हमें कमेंट्स में, देखा जाएगा किस किस को कौन सा फ्रूट पसंद है। ठीक है, तो हमने एक फ्रूट्स का लिस्ट बनाया। फ्रूट्स इक्वल टू, तो हमने लिखा एप्पल। एप्पल, हमारी ज़िंदगी में एप्पल फ़ोन का नाम की बात है नहीं, वो देखा जाएगा बाद में। हमने तो एप्पल लिख दिया है इधर। ठीक है, और हम लिखेंगे मैंगो। ठीक है, मैंगो। फिर उसके बाद हम लिखेंगे पाइनएप्पल, कांटों वाली फ्रूट। ठीक है, और हम लिखेंगे लीची। ठीक है, तो हमने अभी एक लिस्ट बना लिया है फ्रूट्स का। ठीक है, तो हमने एक लिस्ट बना लिया फ्रूट्स का। अभी हम एक कोड लिखेंगे, जैसे हम अभी लिखेंगे फ्रूट्स डॉट अपेंड, और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे, इसमें क्या था, मैंगो। ठीक है, तो हम अभी सबसे लास्ट में कोई और फ्रूट ऐड करेंगे, जैसे हो गया अपना अल्फान, जैसे हो गया अपना वाटरमेलन। चलो ठीक है, वाटरमेलन ले लेते हैं। वाटरमेलन, हमने वाटरमेलन ले लिया। अब देखा जाएगा कि ये कोड कैसे रन करता है। हम देखते हैं अभी कोड ये कैसे रन करता है। ठीक है, तो पहले हम हर एक फाइल को सेव करना चाहिए।
तो हमें याद रहेगा कि हमने क्या क्या किया था क्या नहीं किया था। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा इधर। प्रिंट, ठीक है, हम अगर प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे तो अगर हमने इसको रन किया, प्रोग्राम को रन किया, तो इधर नन आ रहा है, तो कुछ गलती हुई है इधर। तो हमने थोड़ी गलती कर दी थी कोड में। तो हम लिखते हैं अभी कोड अपना। तो हमें इधर लिखना है कि, तो हमने अगर इधर लिख दिया fruits डॉट append लिख दिया, ठीक है। ये ब्रैकेट्स हटा देंगे हम, और ये ब्रैकेट भी हटा देंगे, और हम ये फ्रूट्स को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हम भी प्रिंट करते हैं ये फ्रूट्स को, प्रिंट RUITS, ठीक है। तो ये फ्रूट्स को प्रिंट करने के बाद, तो ये ऐसा लिस्ट बन जाएगा जैसे एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल, लीची, फिर उसके बाद लास्ट में जाके वाटरमेलन लग जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा वाला फ्रूट वाटरमेलन सबसे लास्ट में जाके लगेगा। तो हम अभी देखते हैं कैसे बनता है। देखिए इधर, एक लिस्ट के फॉर्म में बन गया। तो जैसे एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल, लीची और वाटरमेलन, तो देख सकते हो कि वाटरमेलन सबसे लास्ट में जाके बैठ गया। तो अभी सेम चीज अगर हम किसी और के हिसाब से ट्राई करें तो वो भी हो जाएगा। तो अपेंड आइटम इसलिए यूज होता है कि हमें कोई आइटम अगर ऐड करना है लास्ट, मतलब अगर कोई आइटम हमें लास्ट में, लिस्ट के लास्ट में ऐड करना है, तो हम ये यूज कर सकते हैं, अपेंड ब्रैकेट, अपेंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो अगर अभी हम नेक्स्ट ये यूज करेंगे तो इंसर्ट आई डॉट आइटम, ठीक है। इंसर्ट आई डॉट आइटम इसलिए यूज होता है कि जब हमें एक स्पेसिफाई इस पे, मतलब एक स्पेसिफाई इंडेक्स नंबर पे एक कोई फ्रूट या कोई वैल्यू डालना हो, तो हम उस टाइम पे इंसर्ट आई और वो आइटम डालते हैं। जैसे कि अभी हम ये लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम अभी इधर इंसर्ट लिख देंगे, इंसर्ट लिख के अगर हमने इधर वन डाल दिया, वन वाटरमेलन, तो अभी हमें ये दिखेगा कि इसके जगह पे एप्पल और मैंगो के बीच में हमें वाटरमेलन दिखेगा, ठीक है। तो इधर देख सकते हो जैसे कि मैंने बोला था कि एप्पल और मैंगो के बीच में वाटरमेलन दिख गया। तो ये इसलिए यूज होता है कि हमें एक इंडेक्स, मतलब एक स्पेसिफाई इंडेक्स पे अगर कोई फ्रूट या कोई वैल्यू डालना हो, तो हम इंसर्ट आई करके यूज कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट आई कॉमा आइटम यूज करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे। ये हो गया अपना रिमूव आइटम। तो ये आके क्या करता है कि जो फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट अकरेंस होता है, मतलब लिस्ट में जो फर्स्ट अकरेंस होता है उसको रिमूव कर देता है। तो मतलब जैसे अभी हमने इधर लिख दिया एप्पल लिख दिया, ठीक है। तो एक सेकंड, हमने इधर, जैसे हमने इधर लिख दिया एप्पल, ठीक है, PLE एप्पल, ठीक है। और हमने इधर लिख दिया रिमूव, रिमूव, ठीक है। तो अगर हमने इधर रिमूव और एप्पल लिख दिया, तो अब देख सकते हो कि जैसे इधर अपना एप्पल हट गया, मतलब वो लिस्ट से एप्पल हट गया। तो इस रिमूव इसलिए यूज होता है, रिमूव मतलब एक मेथड है। तो वो भी इसीलिए यूज होता है कि रिमूव करने के लिए, मतलब जो पहला अकरेंस है वो रिमूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अभी हम पॉप यूज करेंगे। तो पॉप क्या होता है, पॉप रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट आइटम, मतलब वो पॉप क्या करता है, जो अपना लिस्ट में जो लास्ट आइटम होता है उसको रिमूव कर देता है और उसको रिटर्न भी कर देता है। तो जैसे अभी हम रिटर्न करेंगे पॉप, पॉप, ठीक है। तो हमने इधर बस पॉप करके लिखा है, ठीक है। हम इधर लास्ट करके लिख देंगे, लास्ट इक्वल टू फूड्स डॉट पॉप। तो हम अभी करेंगे, अगर रन करेंगे, तो लगता नहीं है कि करेक्ट होगा। देखा, तो इधर इसने क्या कर दिया, सबसे लास्ट वाला आइटम को निकाल दिया इसमें से, ठीक है। तो यह था पॉप फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम दूसरे इस पे जाएं, तो लेन लिस्ट, तो ये हमें बताएगा कि लिस्ट में कितने आइटम्स हैं। जैसे अब हमने इसमें यूज कर लिया, प्रिंट फंक्शन में यूज कर लिया। जैसे अब हमने इधर ये लास्ट ये वाला हटा दो, और हमने इसके अंदर यूज कर दिया लेंथ, ठीक है। और इधर एक पैकेट डाल दिया हमने, और इधर एक पैकेट डाल दिया, ठीक है। लेंथ क्या होता है, तो वो अपने को लिस्ट का लेंथ दे देता है कि कितने आइटम्स हैं, कितने ये हैं।
तो वो अपने को लिस्ट का लेंथ दे देता है। तो जैसे अब हम F5 प्रेस करेंगे तो ये अपने को 4 दे दिया। इसमें हमने लिखा तो 4 आइटम्स, जैसे एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, लीची हो गया, तो इसमें हमें 4 आइटम्स हैं, तो इसने हमें अपना लेंथ दे दिया, वो लिस्ट का लेंथ दे दिया। ठीक है, तो अब हम जाएंगे दूसरे मेथड पे, जो है सॉर्ट। ओके, तो ये होता है नंबर सॉर्टिंग पे। ठीक है, ये यूज किया जाता है सॉर्टिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, छोटे से बड़ा, तो मतलब ये ओनली नंबर्स पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया, एक प्रोग्राम लिख देते हैं हम इसके लिए। तो जैसे अभी हमने नंबर्स लिख दिया, नंबर्स। ठीक है, और हमने इधर नंबर्स डाल दी। ओके, जैसे हमने अभी इधर नंबर्स डाल दी, 1 8 9 15, कोई भी नंबर्स डाल दो। ठीक है, और हमने इधर लिख दिया नंबर्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, इनमें MBRS नंबर्स। ठीक है, डाल के हमने डाल दिया नंबर्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, अब हमने भी इधर नंबर्स डॉट सॉर्ट डाल दिया। अभी हम प्रिंट करेंगे अपने नंबर्स को। ठीक है, तो अगर हमने भी प्रिंट कर दिया नंबर्स को, तो अगर हम एंटर करेंगे तो इधर देख सकते हो कि ये 1 8 9 15 और 67 जैसा आ गया। ठीक है, तो हमने ऐसे नॉर्मल नंबर्स यूज किए थे, असेंडिंग ऑर्डर से शुरू होगा, छोटे से बड़ा जाएगा। ठीक है, तो यही था, मतलब लिस्ट मेथड्स, जैसे हम लिस्ट के साथ खेल सकते हैं, इतने तरीकों से हम लिस्ट के साथ खेल सकते हैं। मतलब हमारे लैंग्वेज में खेलना बोलते हैं और इंग्लिश में मॉडिफाइंग लिस्ट बोलते हैं। तो यही है कि बस इतना याद रख लो कि हाँ, इतने सारे टाइप्स होते हैं, मतलब इतने सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, खेल सकते हैं लिस्ट के साथ। तो ये था लिस्ट मेथड्स, मॉडिफाइंग लिस्ट। हम अभी दूसरे टॉपिक में मिलते हैं। तो अभी हम आ पहुंचते हैं दूसरे टॉपिक पे, लिस्ट के दूसरे टॉपिक पे। इस पे हम कह सकते हैं कि हम यह कर रहे हैं कि हम फॉर लूप के अंदर लिस्ट यूज कर रहे हैं, मतलब लिस्ट के अंदर फॉर लूप यूज कर रहे हैं। तो पावर कॉम्बो, ये है पावर कॉम्बो है, जैसे अ, यहाँ लिखा है कि कंबाइन फॉर लूप्स एंड लिस्ट्स टू प्रोसेस एवरी आइटम ऑटोमेटिकली, नो इंडेक्स नीडेड। अच्छा, हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं इंडेक्स के बिना, मतलब लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हम इंडेक्स के बिना फॉर लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर एक एग्जांपल दिया है हमें। इधर कहा है कि शॉर्ट हैंड ये है प्लस इज इक्वल टू। तो प्लस इक्वल टू यह करता है कि मतलब टोटल प्लस इज इक्वल टू स्कोर। तो टोटल प्लस इक्वल टू स्कोर क्या करता है, वो एक नॉर्मल ये है, जैसे कि टोटल प्लस स्कोर होता है। ठीक है, इसका टोटल प्लस स्कोर। ठीक है, तो ये कॉमन पैटर्न है, तो हमने सीखा था फॉर लूप के अंदर भी। जैसे अभी हम लिखते हैं काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, तो वो +1 ऐड कर देता है। तो हियर इधर हम टोटल प्लस इक्वल टू स्कोर यूज कर रहे हैं। तो जैसे हम अभी इधर कोड दिया है, तो हम अभी इस कोड को ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो लिस्ट थ्रू फॉर लूप, मतलब हम लिस्ट के अंदर फॉर लूप यूज कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें। तो हम अभी अभी लेते हैं स्कोर्स करके एक वेरिएबल। ठीक है, तो स्कोर्स करके वेरिएबल लिया हमने, उसके अंदर हमने डाला स्कोर्स 7। हमारे ज़िंदगी में इतने अच्छे स्कोर्स कभी आए नहीं हैं, मतलब इतने अच्छे 89 90 87 89 100, इतने अच्छे स्कोर्स आए नहीं है हमारे कभी। पर हम एज्यूम करते हैं कि यह आपका स्कोर्स है। ठीक है, और इधर हमने लिखा है टोटल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो टोटल हमने लिया है 0, और हमने इधर यूज किया है फॉर लूप डालेंगे इधर हम। तो फॉर स्कोर इन स्कोर्स। ठीक है, तो हमने जैसे अभी फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट्स डाला था उस टाइम, लास्ट टाइम। तो हम अभी फॉर स्कोर इन स्कोर्स। ठीक है, हमने इधर फॉर स्कोर्स इन स्कोर्स डाला है, कोलन डालेंगे, और उसके बाद हम इधर डालेंगे टोटल प्लस इक्वल टू स्कोर। ठीक है, तो हम अभी डालेंगे, ऐड करेंगे, मतलब टोटल को स्कोर के साथ ऐड करेंगे, टोटल प्लस इक्वल टू स्कोर। ठीक है, ये हो गया। अब हम प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट। ठीक है, तो पहले इधर एवरेज लिया है हमने,
तो मैंने डायरेक्ट प्रिंट डाल दिया, पर प्रिंट नहीं है। हम पहले एवरेज निकालेंगे इनका। एवरेज, एवरेज इक्वल टू, ये हो गया तेरा आपका टोटल, टोटल डिवाइडेड बाई, हम लेंथ मतलब ऐसे नॉर्मल यूज कर सकते हैं कि कितना ये है, तो हम लेंथ वाला यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना एवरेज। अब हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे इसको, हम एफ स्ट्रिंग्स यूज करेंगे। ठीक है, एफ स्ट्रिंग्स यूज कर कैसे प्रिंट करते हैं इधर, एफ स्ट्रिंग्स एवरेज और एवरेज डालते हैं जी। तो हम अभी यूज करेंगे VRAGE एवरेज, फिर हम इधर करली ब्रेसेस में एवरेज यूज करेंगे, और ब्रेसेस क्लोज, कोट्स क्लोज, फिर ये क्लोज। ठीक है, ये अपना कोड है। तो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। जैसे कि अभी हमें पहले फाइल को सेव करना पड़ता है हर बार, ये एक झंझट की बात है। ठीक है, तो अब देख सकते हो इधर एवरेज 9.10, ठीक है, 91.10, सो इट्स 91.0, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने 91.10। ठीक है, तो ये हुआ अपना 91% एवरेज। तो यह था अपना एक टाइप ऑफ प्रोग्राम, लिस्ट को फॉर लूप के साथ यूज करना। ठीक है, तो ये बहुत इजी प्रोग्राम है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो बस लिस्ट को फॉर लूप के साथ यूज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम विदाउट इंडेक्स, मतलब एक नंबर को इंडेक्स के बिना हम ये कर सकते हैं, मतलब कॉल कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं वो लिस्ट के, इसके अंदर जो वैल्यू है उसको हम फॉर लूप के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो यह चीज़ थी लूपिंग थ्रू लिस्ट। तो अभी हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं दूसरे टॉपिक पे क्या है, और उसको भी हम समझते हैं अच्छे से, और मिलते हैं अभी दूसरे टॉपिक पे। तो भाइयों और बहनों, हम आ पहुंचे हैं द मेन टॉपिक ऑफ पाइथन, फंक्शंस। ठीक है, तो हमने सीखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस होते हैं रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब हम उसको बार बार अपने कोड में यूज कर सकते हैं, जितने बार चाहिए उतने बार हम यूज कर सकते हैं। तो यही लिखा है कि वाई यूज फंक्शंस, हम फंक्शंस को क्यों यूज करें। तो इधर लिखा है कि राइट वंस कॉल मेनी टाइम्स, हम मतलब एक बार वो फंक्शन को लिख देंगे तो फिर हम वो प्रोग्राम में कितने बार चाहिए उतने बार हम यूज कर सकते हैं। तो और एक मेन एडवांटेज है कि वो कोड को ऑर्गेनाइज रखता है, और हम उसको पढ़ भी सकते हैं, मतलब रीडेबल होता है कि हाँ, कोड ऑर्गेनाइज और रीडेबल होता है। और वो अपने को रिपीटिंग ऑफ कोड, मतलब रिपीटिंग ऑफ सेम कोड को हटाता है, मतलब अगर हम फंक्शंस यूज करेंगे तो हमें बार बार वो सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसका एक सिंटैक्स है, जैसे अब हम डेफ लेंगे, डेफ लिख के कीवर्ड लिख के फंक्शन में। ठीक है, तो इसका एक ये है, मतलब सिंटैक्स है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, दूसरा फाइल लेंगे हम, दूसरा फाइल लेके इसके अंदर हम लिखेंगे डेफ। ठीक है, इधर हम लिखेंगे कीवर्ड, कीवर्ड, फिर फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, फिर ब्रैकेट आएगा, फिर एक कोलन आके एंटर। ठीक है, ये अपना फंक्शन का सिंटैक्स है। ठीक है, तो अभी हम एक प्रोग्राम दिया है छोटा सा, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते क्या हैं। ठीक है, तो इधर दिया है कि डेफ ग्रीट, तो हम अभी ग्रीट का एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी डेफ लिखेंगे ग्रीट, और फिर ये ब्रैकेट्स डाल के, ये ब्रैकेट्स डालेंगे और ये कोलन डाल के, तो ग्रीट के अंदर क्या प्रिंट करना है, वो फंक्शन के अंदर क्या प्रिंट करना है अपने को, तो वो डालेंगे हेलो माय नेम इज एलेक्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्रीटिंग स्टेटमेंट। फिर अभी हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने अगर कॉल किया फंक्शन को, ये होता है कॉलिंग। ठीक है, ये होता है फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन को कॉल करना। ठीक है, फंक्शन को हम ऐसे कॉल करते हैं। तो अगर हमने एफ5 एंटर किया, जैसे मांग रहा है वापस सेव करने के लिए,
इधर देख सकते हो, हेलो माय नेम इज एलेक्स, ठीक है। तो हमने एक इधर एक फंक्शन क्रिएट किया, जैसे कि ग्रीट फंक्शन क्रिएट किया, और उसके अंदर हमने एक प्रिंट ये डाला। अगर अभी मैं इसको कितने बार भी डालूं, मतलब अगर मैंने इसको 3 बार डाला, 3 बार डाला, तो ये 3 बार हेलो माय नेम इज एलेक्स करके प्रिंट करेगा। तो अगर ये देखा जाए तो देख सकते हो उधर इसने 3 बार प्रिंट किया है। तो फंक्शंस यही चीज करता है कि आप फंक्शंस को जितने बार चाहते हो उतने बार बुला सकते हो, मतलब जितने बार चाहिए उतने बार बुला सकते हो एक फंक्शन क्रिएट करके, मतलब प्रोग्राम में जितने बार चाहिए उतने बार बुला सकते हो। अगर आपने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया तो फिर वो इजी होगा आपके लिए प्रोग्राम के अंदर वापस वही सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप वो फंक्शन को बुलाने से आपका कोड इजी रहेगा, मतलब ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, रीडेबल रहेगा। तो यही था फंक्शंस के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। हम यूज़ करेंगे फंक्शंस अभी, मतलब अभी एक एग्जांपल है आगे, तो उसमें हम फंक्शंस यूज़ कर लेंगे। देखते हैं उसमें कैसे फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना पैरामीटर्स। तो हम फंक्शंस के अंदर ये भी एक चीज़ करते हैं कि हम अपने फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे कि वैल्यूज हो गए, ठीक है। वो कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। तो हमने अभी वैल्यूज दे दिए पैरामीटर्स को, ठीक है। हमने वेरिएबल्स दे दिए, और मतलब वो तभी देना होता है जब आप डिफाइन कर रहे हो, मतलब डिफाइन जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो ना, तब उस टाइम आपको देना पड़ता है, मतलब वैल्यूज देना पड़ता है, पासिंग डेटा। उसको पासिंग डेटा कहते हैं। तो हम अभी एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे अभी मैंने लिखा है इधर, ठीक है। तो अब मैंने इसको हटा दिया, डेफ ग्रीट, ठीक है। हमने इधर लिखा नेम, और हमने लिखा नेम और ग्रीटिंग हेलो, ठीक है। तो हमने इधर ग्रीटिंग हेलो, ग्रीटिंग हेलो, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। तो हम हमें अभी जब हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स बताता हूँ आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो हम अभी लिख रहे हैं, अभी हम प्रिंट फंक्शन लिखेंगे। प्रिंट फंक्शन में हम लिखेंगे एफ, ठीक है। एफ लिख के हम लिखेंगे इसका नाम, नेम, तो पहले ग्रीटिंग आएगा, ठीक है। ग्रीटिंग, फिर माय नेम इज, इसमें नेम आएगा, ठीक है। ऐसे प्रिंट करते हैं हम, वही होता है। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो जब हम कोई ऐसे, जैसे अब हम ग्रेट लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम जो एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं, जैसे अभी इधर हमें पास करना है नेम, ठीक है। हमने नाम इधर दिया नहीं है, हमने ग्रीटिंग दिया है बस, हमने नाम इधर नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें नाम लिखेंगे। जैसे अभी हो गया आपका एलेक्स, ठीक है। ये होता है आपका एलेक्स। तो इसको कहते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। तो जब हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस टाइम जो हम वैल्यू देते हैं, वो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू देते हैं उसको कहते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो अगर हमने अभी इसको रन किया, देखो इधर आ गया, देखो हेलो माय नेम इज एलेक्स। तो हमने वही किया कि हमने फंक्शन को कॉल किया और उसमें हमने आर्गुमेंट पास किया, और हमने सीखा, अभी क्या सीखा हमने, पासिंग डेटास, ठीक है। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। तो अगर हमने कुछ वैल्यू दिया नहीं उसको, ठीक है, हमने अगर रुको एक सेकेंड, अगर हमने उसको दोनों दिए, मतलब अगर हमने उसको नाम भी दिया और प्लस द ग्रीटिंग्स भी दिया, एक सेकेंड, बॉब, ठीक है, कॉमा, हाय, हाय,
हमने इसमें नाम और ग्रीटिंग्स दोनों पास किए हैं, मतलब दोनों आर्गुमेंट हमने फंक्शन को पास किए हैं। तो इसमें लिखा है हाय माय नेम इज बॉब। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पर ये क्या है कि मतलब हम आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं। अगर आपने आर्गुमेंट्स कुछ पास नहीं किया तो वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमने जो पहले फंक्शन में दिया है, जैसे अभी हमने ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो दिया था, तो वो हेलो एलाइज करके आ गया। और दूसरे एग्जांपल में हमने क्या किया था कि हमने बॉब प्लस ग्रीटिंग भी दिया था। तो हमने दोनों आर्गुमेंट ये किए थे, मतलब दोनों को वैल्यू दिया था, नेम और ग्रीटिंग्स को भी वैल्यू दिया था। तो हमने दोनों आर्गुमेंट पास किया, तो उसने क्या प्रिंट किया, हाय बॉब करके। तो वही था कि मतलब हम पैरामीटर्स पास करते हैं फंक्शंस में। अगर हमने पैरामीटर्स पास नहीं किया, तो अगर हमने जो फंक्शंस फंक्शन में अगर हमने आर्गुमेंट्स पास नहीं किया, तो जो हमने फंक्शंस में पहले से लिख के रखा है डिफॉल्ट, वही मतलब डिफॉल्ट ले लेगा अगर हमने आर्गुमेंट्स पास नहीं किया तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है, रिटर्न वैल्यूज। तो ये हम अभी देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न वैल्यूज गेटिंग डेटा आउट। मतलब रिटर्न हम इसे यूज करते हैं, तो मतलब जब हमने एक फंक्शन में हमने वैल्यूज भी दिया, मतलब हमने पैरामीटर्स पास किए हैं जैसे ए एंड बी, तो हमें अगर उसका कुछ मतलब एडिशन चाहिए या कुछ दूसरा रिजल्ट चाहिए, तो हम रिटर्न यूज करते हैं। इधर जैसे लिखा है कि रिटर्न सेंड्स रिजल्ट बैक। तो वही है कि हम रिटर्न इसलिए यूज करते हैं कि वो रिजल्ट सेंड करे वापस। तो द फंक्शन कॉल इटसेल्फ बिकम्स द वैल्यू रिटर्न। तो वही लिखा है कि रिजल्ट रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न ए प्लस बी यूज करते हैं। तो रिटर्न फंक्शन हम यूज करते हैं। तो अगर हमने रिटर्न यूज नहीं किया, तो वह अपने को या तो जीरो देता है या तो नन दे देता है। तो वह है, तो हम अभी एक प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे क्या होता क्या है, रिटर्न क्या होता है। ठीक है, तो हमने इधर अभी डेफ फंक्शन यूज किया। हमने पैरामीटर्स पास की ए और बी। ठीक है, और मैंने इधर लिखा रिटर्न रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, रिटर्न ए प्लस बी लिखा है। फिर हमने रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड ए प्लस बी। हम लिखेंगे 10 and 3। ठीक है, तो अभी हम प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, तो हमने ऐसे कोड लिखा है, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। इनवैलिड सिंटैक्स। ओके ओके फाइन फाइन, मैंने कीवर्ड यूज नहीं किया इसमें, कीवर्ड यूज करना था, ऐड। ठीक है, ये देखो 13 आ गया अपने को। तो वही है कि रिटर्न क्या बोलता है कि मतलब वो रिजल्ट रिटर्न करता है। मतलब जैसे अभी हमने रिटर्न ए प्लस बी किया था, तो इस वैल्यू के लिए, रिजल्ट के लिए हमें रिटर्न ए प्लस बी, मतलब उसने ए प्लस बी रिटर्न किया और वो रिजल्ट में सेव होके अपने को रिजल्ट दे दिया। ठीक है, तो यही होता है रिटर्न वैल्यू गेटिंग डेटा आउट। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है। नेक्स्ट टॉपिक, सो गाइस इधर एक छोटा सा एक्सरसाइज है, मतलब टॉपिक नहीं है, एक्सरसाइज है। तो मिनी कैलकुलेटर करके एक एक्सरसाइज है। तो आपको क्या करना है, फंक्शन क्रिएट करना है और उसके अंदर आपको रिटर्न करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लीकेशन बी, ए डिवाइड बाई बी। सो आपको एक मिनी सा कैलकुलेटर बनाना है जो पाइथन से बन सकता है, बहुत आसान है वो। तो आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है, जस्ट फंक्शन क्रिएट करना है, और आपको एक इफ एल्फ फंक्शन यूज कर सकते हो रिजल्ट रिटर्न करने के लिए। तो आप ये वीडियो को पॉज करके एक बार आप अपने आप से ट्राई कीजिए। मैं इसका जो आंसर है वो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। ये आप वीडियो पॉज करके आप समझिए और आप कीजिए, मतलब आप समझिए और अच्छे से कीजिए, मतलब फिर आपको समझ आएगा कि हाँ ऐसे काम करता है ये सब। फिर आप अगर कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो यह है लास्ट स्लाइड अपने मॉड्यूल का। तो आज हम देखा जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा ये दो वीडियोस में, जो दो वीडियोस आज हमने डाला था। तो हमने पढ़ा कि इफ एल्स एलिफ क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़े हमने। ठीक है, तो अगर मैं एक बार सब बताना शुरू करूँ वापस से,
तो इफ स्टेटमेंट जब एक कंडीशन ट्रू होता है तब यूज होता है, और एल्स इफ एल्स जब यूज होता है कि जब हमारे पास मोर देन थ्री कंडीशन, मोर देन फोर कंडीशन, मतलब हमारे पास मोर देन टू कंडीशन है, तब हम इफ एल्स एलिफ यूज करते हैं। और इफ एल्स हम जब तब यूज करते हैं जब पहला जो इफ स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाए और वो अपने आप एल्स स्टेटमेंट पे आ जाए ताकि। तो हम दूसरा बात हम सीखा था कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स सीखा। एंड ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर हो गया, नॉट ऑपरेटर हो गया। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दो कंडीशंस ट्रू होती हैं तब वो अपने को आउटपुट ट्रू ही देता है। और जब हम और ऑपरेटर यूज करते हैं, जब एक कंडीशन ट्रू हो, मतलब दोनों कंडीशनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो वो आउटपुट ट्रू ही देता है। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, तो नॉट ऑपरेटर उसका ऑपोजिट, मतलब अगर इनपुट हमने ट्रू दिया तो वो फॉल्स कर देता है, अगर हमने फॉल्स दिया तो वो ट्रू कर देता है। तो अभी हम थर्ड इस पे जाए तो हमने सीखा कि फॉर लूप्स क्या होता है। सो फॉर लूप्स ये होता है कि मतलब कितने बार प्रिंट करना है अपने को, मतलब रेंज दिया था हमने, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें दी थी, जैसे कि लिखा आइटरेट ओवर सीक्वेंस ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली प्रिंट करता रहता है रेंज के हिसाब से। मतलब अगर हमने रेंज दे दिया तो वो वह रेंज तक ऑटोमेटिकली वही सेम लाइन ऑफ कोड प्रिंट करता रहता है। तो वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप यह होता है कि जब तक एक कंडीशन ट्रू हो तब तक वो रुकता नहीं है, वो अपने आप प्रिंट करता जाता है, प्रिंट करता जाता है। और जब अपना कंडीशन फॉल्स हो जाए तब वह अपना आइटरेशन रोक देता है। तो वह था वाइल लूप। सो नाउ अगर हम ब्रेक एंड कंटिन्यू की बात करें तो ब्रेक यह करता है कि अगर हमने ब्रेक यूज कर लिया फॉर लूप के अंदर, तो वो ब्रेक आके फॉर लूप से बाहर आ जाता है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट यह करता है कि मतलब वो स्किप कर देता है, जो दूसरा इटरेशन है वो स्किप कर देता है। जैसे अभी हमने जीरो और टू के बीच में अगर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज किया तो वो वन को स्किप करके सीधा टू पे चले जाता है। तो वो था ब्रेक एंड कंटिन्यू। अभी हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लिस्ट क्या होता है कि मतलब मेनी ऑर्डर्ड वैल्यूज, मतलब ऑर्डर्ड वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर विद इन द सेम वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल के नाम पे हम बहुत सारे ऑर्डर्ड वैल्यूज सेव कर सकते हैं। और डेफ था फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शंस क्या होते हैं, रियूजेबल कोड ऑफ ब्लॉक, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हम बार बार अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अगर हमने एक बार एक फंक्शन बना दिया तो हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। और हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि पैरामीटर्स क्या है और रिटर्न स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है। तो पैरामीटर्स यही होता है कि हम फंक्शंस के अंदर डेटा पास करते हैं। और रिटर्न्स क्या होता है, मतलब रिजल्ट को बाहर लेके आता है, मतलब सेंड रिजल्ट आउट। तो यह था, आज हमने इस सब चीजों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड योर कोडिंग गुरु signing off.